اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی عروج پر رہی پاکستان میں پچھلے 2 دہائیوں میں تو وہ 2025-2026 ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی کن وجوہات سے دوبارہ بڑھی۔ وہ دہشت گردی جو 17-18 میں بالکل ختم ہو چکی تھی، کس وجہ سے؟ کیا کسی کو ریڈ کارپٹ دے کر لایا گیا؟ کیا پالیسیز تھیں؟ کیا اس میں اور کوئی کمی کوتاہی تھی؟ اس میں جائے بغیر میں صرف اتنا آپ سے کہہ دوں جناب اسپیکر کہ پچھلے 1 سال میں 1,75,000 سے زیادہ آئی بی اوز کیے۔ ان آئی بی اوز میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ شہادتیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہوئیں، 1,020 لوگ شہید ہوئے۔ جناب اسپیکر، دہشت گردی 2000 اوائل سے شروع ہے، لیکن 2025 اس کا عروج تھا۔ اس میں 1 سال میں 3,355 واقعات ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 95% واقعات جو ہیں وہ کے پی اور بلوچستان میں ہوئے۔ اب اس میں ہمارے سویلینز جو شہید ہوئے وہ 783 سویلین شہید ہوئے، 1763 اس میں زخمی ہوئے۔ جناب اسپیکر، اس ساری جو فگرز ہیں، اگر دہشت گردی میں ہماری شہادتیں زیادہ ہوئیں تو پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں اور آئی بی اوز میں پہلی دفعہ 1 سال میں 1890 دہشت گرد مارے گئے۔ ان 1890 میں بڑی تعداد ہمارے بدقسمتی سے ایک ایسے ہمسائے ملک کی ہے جس کے ساتھ سرحد ہماری کوئی 2-2.5 ہزار کلومیٹر لگتی ہے، افغانستان، جو وہاں کے نیشنل تھے، وہاں سے یہ تشکیلیں، یہ گروپس آتے ہیں۔ میں اس ساری صورتحال میں جو دہشت گردی میں بار بار کہا جاتا ہے، جناب اسپیکر، کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں، لیکن کوئی وفاق اکیلے بغیر صوبوں کے یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ اس میں جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، ان کی ابیلٹی میں، ان کی ول میں، ان کا ختم کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کہیں کمی ہے تو سیاسی جماعتوں کو اپنی سیکورٹی فورسز کے پیچھے ایک بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہے۔ جب یہ کھڑی ہوئی تھی تو 2016-17 میں دہشت گردی ختم ہوئی تھی۔ جناب اسپیکر، کے پی صرف دہشت گردی کے لیے این ایف سی کا 1% ملتا ہے۔ میں کوئی پوائنٹ سکور نہیں کرنا چاہتا، 800 ارب کے قریب ملے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، 20 سال سے دہشت گردی ہے، دوسرے صوبوں میں فورینزک لیب بھی بنتی ہے، سی ٹی ڈی بھی بنتی ہے، سیف سٹیز بھی بنتے ہیں، وہاں پر انویسٹ کیا جاتا ہے اپنی سیکورٹی فورسز پہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی کام شہباز صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے شروع کیا۔ آج پنجاب ان تمام چیزوں میں لیڈنگ رول ہے اس کا، اس پاکستان میں، اور اسی طرح سندھ اسے فالو کر رہا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس بات کو تقریروں کی بجائے آپ ان کیمرہ رکھ لیں، آپ دوسرا کوئی اجلاس رکھ لیں، لیکن میری ان سے گزارش ہے کہ جب سیکورٹی کے معاملے پہ، پاکستان میں دہشت گردی کے معاملے پہ، پاکستان پہ ہونے والے حملوں پہ، ان لوگوں کے جو فٹ بال کی طرح ہمارے سیکورٹی فورسز کے سروں سے کھیلتے ہیں، اس پہ اجلاس ہو تو یہ تشریف لے آیا کریں۔ جعفر ایکسپریس پہ آپ نے اجلاس یہاں کیا، یہاں تمام سیکورٹی فورسز آئیں، اگر کوئی نہیں آیا تو آج وہ میرے بھائی نہیں آئے جو کہ تنقید کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ جیسا مرضی اجلاس رکھیں، جس طرح کی مرضی، ہم حاضر ہیں ہر طرح کی بریفنگ دینے کے لیے، لیکن کوئی نیم اور شیم نہیں۔ لیکن چاروں صوبوں کی کارکردگی نیشنل ایکشن پلان میں، جس کا نیشنل ایکشن پلان 2 پچھلے عمران خان صاحب کے دور میں بنا، اس پر امپلیمنٹیشن جو کہ ایک مشترکہ ڈاکومنٹ ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ کون سا صوبہ نہیں کر رہا؟ وفاق نے اس میں کتنی کمی کی؟ جناب اسپیکر، بڑا اہم معاملہ ہے، لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، 25 سال سے دہشت گردی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ وہ
पेशावर जो केपी जिसमें सबसे ज्यादा दहशत गर्दी है, उसमें जब हमारी हुकूमत आई तो पूरे पेशावर में 25 कैमरे थे सेफ सिटी के सिर्फ। मुझे ये बताइए किसने बनाना है? मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इन्होंने पैसे रखे हैं, लेकिन ये बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। सीटीडी आधे डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी नहीं है, फोरेंसिक लैब इनकी आज नहीं है। मुझे ये बताइए, मैं दोबारा कहूं, वफाक हाजिर है इनसे, दिलो जान से हाजिर है। जनाब स्पीकर, जो वसाइल चाहिए, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि उस पे ब्लैंक चेक है, लेकिन आए बैठे बात करें। इस बात पे तो कोई पॉइंट स्कोरिंग ना करें। जनाब स्पीकर, हमने क्या किया है, एक एक चीज जब भी आपको इजलास रखेंगे मैं आपके सामने रखूंगा। दहशतगर्दी इस हुकूमत के बजट का पहला हदफ है कि सबसे पहले अमन आएगा, इससे बाद और कोई चीज होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह इसके बाद FIA पे बड़ी तनकीद होती है, कोई शक नहीं है, कुछ गंदे लोग भी सिस्टम में होंगे, लेकिन जनाब स्पीकर ये ही FIA है जिसमें डेपुटेशंस कौन करता है? कौन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को लाके वहां डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर लगाता है? कौन इनकी भर्तियां करता रहा है? कौन इसी एंटी नारकोटिक्स को, इस FIA को पॉलिटिकली यूज करता रहा है? जनाब स्पीकर, मैं तो फिगर्स आगे रखूंगा। तमाम डेपुटेशंस जो गैर जरूरी थी वो पूरे प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर हमने तमाम को वापस भेजा है। हमने सबसे पहले इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पे 250 अफसरान नौकरी से निकाले हैं, क्रिमिनल केसेस दर्ज किए हैं, उसके बाद अगली बात की। लेकिन इसी FIA ने इसी हुकूमत के होते हुए कोई FIA का अफसर नया नहीं आया, वही थे। लेकिन ऊपर से जब आप ठीक हो तो नीचे तक चीजें ठीक होती हैं। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते खुशी हो रही है कि सबसे बड़ा इल्जाम हम पर यह होता है कि यहां से गैर कानूनी तारकीने वतन पाकिस्तानी इल्लीगल दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे वीजे, हमारे पासपोर्ट की रेटिंग, हमारी रेपुटेशन मुतासर होती है। कभी किसी कश्ती हादसे में वो शहीद मारे जाते हैं, कभी एजेंटों के हाथों वो रुल जाते हैं। जनाब स्पीकर, सिर्फ 2 साल के अंदर 47% पाकिस्तानी गैर कानूनी का दुनिया में जाने में कमी हुई है। ये फिगर्स हमारे नहीं है, बैनुल अक़वामी एजेंसी के हैं। जनाब स्पीकर, हाई प्रोफाइल केसेस हों या बाकी शिकायत हों, ये हम एक उसी तरह का डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम इस पे ला रहे हैं। एक एक चीज, एप्लीकेशन से लेकर इंक्वायरी, उसके बाद केस रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद अदालत के चलान तक, एक एक चीज आप यहां बैठ के देख सकेंगे। कोई इसी तरह ही इस सारे में बार बार कहा जाता है कि आप लोगों को डिपोर्ट करते हैं। जनाब स्पीकर, हमें तो कोई शौक नहीं। मुझे ये बताइए, अगर सऊदी अरब, हमारा दोस्त मुल्क, हमें 5,500 भिखारी पकड़ कर दे और कहे कि ये आपने भेजे हैं, तो हम क्या करें? अगर इसी तरह ही UAE हम पर सवाल उठाए कि ये बेकारी या इसी तरह के ऐसे इलीगल लोग आए हैं, तो हम क्या करें? जनाब स्पीकर, हमने एक प्रोफाइल सिस्टम बनाया है। इस प्रोफाइल सिस्टम में हर फर्स्ट टाइम जो ट्रेवल करता है उसके लिए पूरा एक सिस्टम है, उसके लिए हमने डेस्क बनाया है। क्योंकि जनाब स्पीकर, यहां से लोग तो पासपोर्ट वीजे पे ही जाते हैं, लेकिन आगे से जाके वो गायब होते हैं। तो इसमें हमें आपकी कोऑपरेशन चाहिए। हमने जो नया सिस्टम, नई एक सॉफ्टवेयर बनाया, वो भी किसी वक्त आपके सामने रखूंगा। क्विकली कर देता हूं जनाब स्पीकर। इसके बाद साइबर क्राइम जो नया अदारा है, सिर्फ 481 मुलाजमीन है पूरे पाकिस्तान के लिए। मैं वजीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, कैबिनेट का, कि उन्होंने हमें मजीद भर्ती की इजाज़त दी है। इन 481 मुलाजमीन ने
72,400 शिकायत आई, उनको डील किया, 32,146 शिकायत की तस्दीक की, 10,356 की इंक्वायरी की, 637 केस रजिस्टर किए, 689 लोगों को पकड़ा, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सिक्योरिटी, जो हमारे शोधा का मजाक उड़ाते हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर, जो हमारे चीफ जस्टिस से लेकर बहुत सारे लोगों के सरों की कीमत लगाते हैं, जो इसी तरह फाइनेंशियल क्राइम, जिसमें बहुत सारे आपने देखा होगा कि कॉल सेंटर्स बने हैं जिसमें कई गैर मुल्की भी पकड़े गए हैं, वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड इधर से होता है। जनाब स्पीकर, पासपोर्ट, जनाब स्पीकर, बुरी खबरें तो हमेशा हम डिस्कस करते हैं, कभी अच्छी खबर भी करनी चाहिए। पासपोर्ट जिसकी इज्जत की तकरीरें तो हर सियासी जमात करती है, पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के 199 पासपोर्टों में हमेशा 130, 40, 25 से नीचे नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ की हुकूमत में आज इसका दर्जा 100 से नीचे है। ये रेटिंग में इम्प्रूवमेंट है, ये रेटिंग की इम्प्रूवमेंट ये काम से आई है। इस काम से हमने पासपोर्ट के सिक्योरिटी फीचर्स हो, नया पासपोर्ट हो, वो चेंज किया। हमने इसमें इमिग्रेशन लॉज लेकर आए, इमिग्रेशन लॉज को इम्प्लीमेंट किया, पाकिस्तान के इलीगल लोगों को बाहर भेजने से कम रोका। सर, इसमें जो 10 से ज़ायद मुमालिक के साथ ब्लू पासपोर्ट, रेड पासपोर्ट, यूरोपियन मुमालिक और गल्फ के मुमालिक के साथ हमारा एग्रीमेंट, वीज़ा फ्री एग्रीमेंट हुआ है। इसी में सर MNAs की डिमांड है कि पासपोर्ट ऑफिस होने चाहिए। सर, हम इंशाल्लाह ताला इसी साल कोशिश कर रहे हैं कि नए पासपोर्ट दफ्तर बनाना बहुत सारी कॉस्ट लगती है। नादरा के तमाम दफ्तर इंशाल्लाह ताला, नादरा और पासपोर्ट के जो नादरा के दफ्तर हैं वो हम ऐसी अरेंजमेंट कर रहे हैं कि वहाँ भी तमाम नादरा दफ्तरों में भी पासपोर्ट बन सकेगा। मैं सर क्विकली तेजी से ख़त्म करने से पहले जनाब ICT और CDA, जनाब पिछले सिर्फ 2 साल में 15 बड़े प्रोजेक्ट्स, जिसमें जिना स्क्वायर 72 दिनों में, तैयब अर्दगान 84 डेज में, इकबाल फ्लाईओवर 77 डेज में, 9th एवेन्यू 63 डेज में, इसी तरह ही इसमें फैज़ाबाद की रीमॉडलिंग हो। और जनाब स्पीकर, बार बार जेल का जिक्र कर रहे हैं, हम एक मॉडल जेल भी इनके लिए बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बेहतरीन जेल सर, हर सहूलत होगी सर उसमें। मेरा कहने का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, जिसमें बच्चों की बैरक भी होगी, खवातीन की भी होगी, बूढ़ों की भी होगी, बाकी लोगों की भी हो रही। सर जी बस अल्लाह खैर करेगा, हम रोए ना, भागे ना। हाँ जी, अल्लाह हमें इस्तिकामत दे ही रखे, मुश्किल वक्त आते इस्तिकामत से काटने चाहिए। आगे अगली बात सर ये सारे प्रोजेक्ट्स इसमें क्या जनाब स्पीकर, ये सारे प्रोजेक्ट्स इंटीरियर मिनिस्टर हो, ये सारे प्रोजेक्ट भी सब लाइव गए हैं। सर मुझे ये बताइए, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। मैंने जेल की बात की तो सारे इनको सुइयां चुभ गई। ये क्या बात सर? गुजारिश ये है, ये जो CDA और ICT में इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के मिनिस्टर इंटीरियर जो हैं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड हो, क्वालिटी हो, उस प्रोजेक्ट्स के रेट्स हो, काम करने का तरीका हो, अगर सीखना हो तो हम हाजिर हैं। काम सीख लें सर एक मेट्रो बनाई है इन्होंने, शहबाज शरीफ ने 90 अरब से 4 शहरों में मेट्रो बनाई, इन्होंने 100 अरब से इनसे एक नहीं बनी। सर नकल के लिए अकल की जरूरत है, अगर चाहिए हम हाजिर हैं सर, ये काम करने के लिए होते। सर उसके बाद ICT में मैं डिटेल में नहीं जाता। इस्लामाबाद पुलिस सर, क्विकली सर, इस्लामाबाद पुलिस 48% क्राइम्स, मैं दोबारा दावत देता हूँ। इंटीरियर की कमेटीज में मैं
दे चुका हूं ये प्रेजेंटेशन। 48% हीनियन क्राइम्स इन इस्लामाबाद, वो कार स्नैचिंग के हो, डकैती के हो, डकैती विद मर्डर के हो, बच्चों के अगवा के हो, मोटरसाइकिल की डकैती हो, ये राजनी हो, 48% कमी आई। कोई हाई प्रोफाइल केस ऐसा नहीं है जो हमने कैलकुलेट ना किया हो, कोई भी। जनाब स्पीकर, सेफ सिटी पाकिस्तान का पहला सेफ सिटी नहीं, पहला स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद बनेगा। हम नई ई गवर्नेंस, उसमें तमाम म्यूनिसिपल सर्विसेज जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपके बिजली के मसाइल से लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कूड़ा उठाने से लेकर ट्रैफिक, बाकी तमाम चीज़ें पहले से महफूज, ग्रीन और पहला स्मार्ट सिटी बनेगा इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, क्विकली जवाब दे दूं जो MNS ने कहा है। सबसे पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मलेशिया में ड्यूल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट हमारा नहीं है। जनाब स्पीकर, हमारे 23 ड्यूल नेशनैलिटी के एग्रीमेंट्स दुनिया के साथ हैं। इस हुकूमत में 4 मुल्कों के साथ, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक के अलावा 4 मुल्कों से किए हैं। 5 मुल्कों के पाइपलाइन में, जिसमें टर्की, साउथ अफ्रीका, स्पेन और मलेशिया शामिल है। जनाब स्पीकर, बार बार कहा जाता है पंजाब पुलिस तैनात है। NN 32 के MNA ने कहा, नूर आलम साहब ने कहा, और वहाँ पर नाकों पे कोई तजलील होती है। जनाब स्पीकर, जब हमें नफरी चाहिए होती है हम चारों सूबों से मांगते हैं। जो कोई सूबा दे दे तो हमें ज़रूरत के मुताबिक लगानी पड़ती है, लेकिन बिल्कुल मैं ये क्लियर, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होती कि सुबाइयत के नाम पर, किसी पर फिकाई के नाम पर किसी के साथ किसी चेक पोस्ट पे ज्यादती हो। ये हो ही नहीं सकता और ऐसा है ही नहीं है। जनाब स्पीकर, यहाँ पर खोसा साहब है नहीं, उन्होंने कहा कि कराची की पिंकी दंदनाती फिरती है। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस आपको यकीन दिलाता हूँ, पिंकी कराची की हो या लाहौर की हो, जो कारोबार गलत करती है हम नहीं छोड़ेंगे। जनाब स्पीकर, कोई हीरोइन बेचे या कोई हीरे लेकर काम करे, कोई गैर कानूनी काम करने वाली पिंकी पाकिस्तान में ना पिंक ना पिंकी नहीं रहेगा। जनाबे वाला सर, ये बार बार कहते कच्चे के डाकू की बात हुई है। जनाब, इस जो पंजाब है उसमें कोई नो गो एरिया नहीं। मैं सिंध हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। इसी बेंचेस से हमारे अरकान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। एक बच्ची अगवा हुई थी, सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करके ना सिर्फ लोगों को वहाँ पुलिस मुकाबले में मारे गए, बल्कि उस ऑपरेशन के बाद वहाँ भी नो गो एरिया ख़त्म हुआ। ये हमने मिलके करना है। ये 3 सूबे उधर लगते हैं जनाब स्पीकर, ये 3 सूबे लगते हैं, लेकिन ये इसी की तरह सर, ये असद कैसर साहब ने कहा था चेक पोस्ट के हवाले से, जो चेक पोस्ट हमने 50% इस्लामाबाद में कम कर दी हैं। जो कोई ऐसी चेक पोस्ट होगी जो जायद होगी, जो असद कैसर साहब ने निशानदी की है, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम ख़त्म करवा देंगे, उसे ख़त्म करवा देंगे। जनाब स्पीकर, इसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बात हुई, बड़ी बजा तौर पे ख्वाजा आसफ साहब ने भी उस पर बात की। बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे एक पॉलिसी है, उसके लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री में बहुत ही एक अहम कमेटी, जिसमें बड़े ही सख्त उसके SOPs या उसके क्राइटेरियाज के बाद इजाज़त दी जाती है। और कोई गाड़ी की, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, कोई ऐसी गाड़ी ऐसे आदमी को नहीं दी जाती जो मिसयूज़ करे। और जिनके पास हैं गाड़ियाँ, वो अपनी गाड़ियाँ बेच नहीं सकते, वो गाड़ियां वापस इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास आती हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के सामने डिस्ट्रॉय की जाती हैं। लेकिन स्मगल होकर इल्लीगल ऐसी गाड़ियां अगर पाकिस्तान में हैं तो वो सूबों को हमारे साथ तावन करना चाहिए। कई सूबे ऐसे हैं जिनके शहर बड़े बड़े हैं स्मगल्ड गाड़ियों से। अगर यहाँ भी कोई ज़रूरत है, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि बुलेट प्रूफ कितने हमने NOCs दिए, किस किस को दिए,
किस किस वजह से दिए, और इसमें मजीद कोई गाइडलाइंस होंगे तो उस पर हम अमल दरामद करेंगे। वाइंड अप करें सर, वाइंड अप करें सर। मैं इतने अच्छे बच्चे बन के किया सर गुजारिश ये है कि मैं दोबारा गुजारिश कर दूं सर, इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से, इंटीरियर मिनिस्टर साहब के खिलाफ भी रोज़ ही बयान देते हैं। यकीन करें, इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी मुतमिन है, इंटीरियर की कारकर्दगी से भी मुतमिन है। ज़ाती हवालों से इनके ज़रूर मामलात हैं, सुबह तनकीद करते हैं, यहाँ तकरीर करते हैं, शाम को टाइम लेते हैं। ये मैंने खुद देखा है सर। मेरी गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है कि हम अब इसके लिए गुजारिश ये है, हम इसमें बाकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से जनाब स्पीकर, आपको मैंने पहले भी फ्लोर ऑफ द हाउस का दोबारा, किसी भी वक्त आपकी कोई कमेटी हो, आपके सवालों जवाब हो, आपका कोई इजलास हो, इसके अलावा प्रॉपर इंटीरियर पर 2, 3 दिन, 4 दिन की आप बहस रखें। हम पूरा डिपार्टमेंट आपकी गाइडलाइंस के लिए और अपने आप को पेश करने को तैयार है। थैंक यू वेरी मच सर। इंटीरियर की कमेटी है, उसमें कर लेंगे, और अगर मेरे ऑनरेबल कोलीग्स लिख के देंगे तो हम आपको रेफर भी कर देंगे। जी, अब आप आ जाइए। कट मोशन हैड मूव्ड ऑन डिमांड नंबर 61 बी अडॉप्टेड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट। और था तलाल चौधरी ये सारे ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा वफाकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विसेज और पाकिस्तान लैंड बोर्ड भी कायम की गई है। वज़ारत दाखिला के इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के 3192 एहलकार खिदमात अंजाम दे रहे हैं।